Our, This conference our will today's now be topic is recorded. text attribute. Text attribute of body. Okay. Up to now we have covered body attributes. We are discussing attributes. In this we discuss BG color, DG color. Next we have text attribute. Next we have background. Next we have link, a link and v link. These all are the attributes of body tag. Okay, so we discussed, and one we have margin. Okay, so these are the attributes of body tag. So next we have a text attribute. Let's discuss. Just check. Hello, able to hear me, everyone? Yes, everyone able to hear me? Okay, that's good. Bhumi and Anya, Anuj, Tanesh. Okay, that's good. So let's start. So students, I am writing some text here. I am writing testing of HTML. I'm just writing this. Testing of HTML. Now, in this case, okay, I make it small. Okay, let's see this. And I have this also. And let's see. And I run this code. Just HTML page is going to run. Just wait. Okay. So here is what? Testing HTML page. You can see students, I am writing testing HTML page और यहाँ पर हमारा कंटेंट आ गया. लेकिन अगर हम चाहें कि भाई इसे बैकग्राउंड कलर को हमें चेंज करना है तो हम क्या यूज करते थे? बीजी कलर. क्या यूज करते हैं हम? बीजी कलर इक्वल टू, लेट सपोज आई एम गिविंग येलो. ठीक है. एंड इफ आई रीलोड तो ये बैकग्राउंड में कलर क्या आ गया? येलो. बट माय रिक्वायरमेंट इज टू change the font, change the text color. My requirement is to change the text color. ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका कलर हमें चेंज करना है. तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? टेक्स्ट एट्रीब्यूट. ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट वी यूज टेक्स्ट. So I'm using text equal to, I'm using red. ओके, देखिए बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट आता है वो कैसा आता है? वो आता है ब्लैक. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट आता है वो कैसा आता है? ब्लैक आता है. लेकिन अगर हमने यहाँ पर टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज किया तो जैसा भी हम कलर का नाम लिखेंगे, जो भी हम कलर का नाम लिखेंगे, हमारा टेक्स्ट उसी कलर में आने लग जाएगा. ठीक है, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हैश
999999. ठीक है, I can use code also. So text in the gray form. I'm writing hash ff00ff, showing some color, maybe combination of this. So let's suppose this, and I am refreshing it. Okay, and you can see here combination of color is there, something pink. If we combine red and blue, so pink color will be there. So if we want to change the color of default text color, if we want to change, so we use text attribute or body tag. Now anything if I am writing, okay, anything if I am writing inside the body, anything, all comes in color pink only, right? So we can change the default color of the body. We can change the default color of body text by using a text attribute. And if I want to use both, up to now we used two attribute of body, one is bg color and one is text. तो टेक्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डिफॉल्ट कलर है बॉडी का, वो हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं. डिफॉल्ट कलर हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं. नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि सर अपने बॉडी के जो टेक्स्ट है वो तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन मुझे बैकग्राउंड भी लगाना है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बीजी कलर एंड आई एम यूजिंग येलो. बीजी कलर आई एम यूजिंग येलो. ठीक है. सो यू कैन सी सिंपली we able to change the color also. We can change the color of the background of body. Okay, and one thing is to be considerable between both attributes. Remember this point very carefully. Very important discussion. What in case text this and this, between both attribute there is single space must be required. Between both attribute single space must be required. Okay, and one thing is very important, there is order of attributes is not fixed. Order of attribute is not fixed. Either you can define bg color first, you can define text color first, either you can define text color first, bg color second, no issue at all. The order of attributes is not defined. Okay, order of attributes is not defined. There is no compulsion you have to write text attribute first and you need to write bg color second. No problem at all. As you required in any order you can define this. Okay, let's I'm changing the order. I'm using bg color first and text second. No problem at all. You can use bg color first, text first, no problem at all. The order of attributes is not fixed. कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है. ऑर्डर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टैग और एट्रीब्यूट के बीच में सिंगल स्पेस मस्ट है. दिस इज द स्पेस. एंड एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट से एक स्पेस सिंगल मस्ट है. दूसरा we must use and double quote symbol to define the value of tag attributes. To define the value of attributes we use what? We use double quotation marks. Same here, at the defining to the value of the attributes we use double quotation mark. This is mandatory. Okay, this is mandatory. Now one thing is here. Okay, I am changing the color. Let's suppose I am changing the color to green. Okay, let's see, and you can check. Okay, green color and red is what? Text color. I can also change the color yellow. So happily possible to all, no problem in it. We can take any sequence, bg color then text, like text pehle bg color baad mein, no problem at all. Sequence doesn't matter of attribute sequence doesn't matter. The matter is
the space between tag and attribute name, and the space between one attribute to another attribute. One single space is required. Now this is done. Text is used to change the default color of. If I not use text color, the default color of the body text is black by default. But if I want to change the default color of body, attributes, body text, so we can use text attribute here. Is it clear to all? I think no explanation more required with this two attributes. Okay, move to the next important attribute of body. Now, next we have, okay, BG color is used to change page color, change background color of page. Okay, change background color of page. यह है used to change text color of page. ठीक है, used to change text color of page. ठीक है, used to change text color of page. Now next we have background. Now one thing is here, guys, on so many websites, है ना, so many websites, you can see, or you see some images, है ना, on the background of anything. You see some images, so that images at the background, we apply some color, as well as we can apply some background image. We can apply some background image to the web page. Okay, yes, this is possible. We can apply some background image to the web page, no problem at all. At place of this background color, we can apply background image. The attribute name is background. ठीक है, attribute name is background. BG color is used to provide the background color only, but background attribute is used to provide some background, some graphic, some image, like this we can provide at the background. This, let's suppose download one image, some image I am going to download. Just open my I open some body web page background. ठीक है, web page background images. I am taking this. So there are so many images, guys. You can see here so many images, so many different images, right? So I'm taking this one, quite nice. So I'm using this one.
just wait. This is open. Okay. Right click on it and save as image. ठीक है, सेव एज इमेज। मैंने इसको सेव कर लिया और बच्चों इसको हम सेव करते हैं कहाँ पर, अपने फोल्डर में, 10th फोल्डर में। इसका नाम मैं दे देता हूँ IMG। ठीक है, IMG मैंने इसका नाम दे दिया। चलिए, ये हुई हमारी डाउनलोड एंड लेट्स सी वेयर इज द इमेज इनसाइड आवर फोल्डर एंड इमेज ये आ चुकी है। हमने इसका नाम दे दिया था क्या, IMG। ठीक है, IMG इज द नेम। just wait, is taking few time to be open. Okay, just wait, just opening. I'll show you. चलो कोई बात नहीं, हम ये सीखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ओपन हम वहीं पे कर लेंगे वेब पेज। ठीक है, तो अभी अगर इसको हमें लगाना है तो बच्चों बैकग्राउंड हमने एट्रीब्यूट लगा दिया और दूसरा हमारे इमेज का नाम क्या है, IMG। इमेज का नाम क्या है, IMG, और एक्सटेंशन क्या है उसका, JPG। जस्ट आप देख लो पहले, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। और देखिए मैं इसको जैसे रीलोड करूंगा और आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज हमारे वेब पेज पर आ चुकी है ना, इमेज आ गई ना वेब पेज पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बच्चों कि इमेज छोटी होने की वजह से रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर खत्म हो गई, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पर खत्म हो गई, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गई, समथिंग लाइक दिस। तो इमेज आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन, आइदर टेक ए बिग साइज इमेज, जस्ट सी बिग इमेज वी विल टेक प्रोफेशनल 108p पिक्सल, बड़ी इमेज लेते हैं कोई, है ना। लेट्स सपोज दिस वन, एंड ये काफी बड़ी पिक्सल की इमेज है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी हम अपने फोल्डर में सेव करेंगे जहाँ पे हमने अपने HTML की फाइल को रखा हुआ है ना। और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं IMG2। ठीक है, IMG2। ठीक है, चलिए ये वाली भी हमारी इमेज सेव हो चुकी है। अब इसको अगर मुझे लगाना है वेब पेज पर तो बस मुझे क्या करना है, नेम चेंज करना है। जस्ट आई वांट टू चेंज द नेम। आई रिसीव वन मैसेज, लेट मी चेक। Yes, this is possible to write something on the background after applying the image. I'm writing image 2 and I just reload it. I just reload it and you can see, okay, image is here. Okay, this is a big size image. So image is here and we applied our image. Okay, we have successfully applied our image. Okay, this is possible. Or we can take some another images, right? This is a very big image actually, huh? So from here we can take some another images, some professional patterns like what, hmm? Some professional patterns like what, we can take this one also, huh? So many different type of images we have. Okay, okay, so this is the way we can apply our image, hmm? And suppose we applied our first image IMG2, and how can we do this, just we discuss now. ठीक है, तो हमारी पहली वाली इमेज आ गई। इफ यू वांट टू राइट समथिंग, no Harsh, I'm just telling you, just wait, just I need to be completed, okay?
आई एम टेलिंग यू कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नाउ वन थिंग इज, इफ आई वांट टू राइट समथिंग ऑन दिस पेज, इट्स हैप्पीली पॉसिबल, आई एम राइटिंग सैंपल टेक्स्ट, ठीक है, आई एम राइटिंग सैंपल टेक्स्ट एंड I copy this many times and I am changing the color of text. Text equal to red and green. Red. Huh? So you can see our text is visible on the web page also. ठीक है, तो जो हमने टेक्स्ट हमने लिखा था सैंपल टेक्स्ट, वो हमारे इमेज के ऊपर विजिबल भी हो रहा है और हमने अपने अपने बैकग्राउंड पर एक इमेज सेट भी कर दी है, ठीक है। अब इस इमेज को समझने के लिए, इस इमेज को लगाने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। जैसे पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चों ये फोल्डर है जहां पर मेरी HTML की फाइल रखी है, देखो होम, यही फाइल हम रन कर रहे हैं ना, देखिए एक बार वेब पेज पर देख लीजिए आप लोग, देखिए home.html यही फाइल हम रन कर रहे हैं। तो देखिए जहां पर हमारी फाइल है, जहां पर हमारी ये होम नाम की फाइल है, जहां पर हमारी HTML, वहीं पर ही हम अपनी क्या रखेंगे, इमेज फाइल्स को रखेंगे। वहीं पर हम क्या रखेंगे, देखो इसी फोल्डर में हमारी होम फाइल, ये HTML की फाइल है, उसी फोल्डर में हमारी इमेज फाइल है, तो हम इनको एक ही जगह पे रखेंगे, ठीक है। अगर हमने गलती से इन इमेज को, जैसे मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया, मान लेते हैं IMAGES इमेजेस, राइट, और इस फोल्डर के अंदर ये दोनों इमेज को मैंने क्या डाल दिया, इस फोल्डर के अंदर डाल दिया, मान लेते हैं, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर नहीं। अगर अब हम अपना वेब पेज चेक करें तो देखिए यहां से एरर आ जाएगी, हमारी क्या हो गया, हमारी बैकग्राउंड से इमेज हट गई। हट क्यों गई, क्योंकि हमने मैं अभी हम डिफरेंट टेक्स्ट को डिफरेंट कलर से अभी नहीं करेंगे, ये हम करेंगे बाद में, क्योंकि अभी तो हमने जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट सीखा है, केवल टेक्स्ट एट्रीब्यूट बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी के अंदर कलर को चेंज करेगा। और जो आप चाहते हो कि भाई एक एक लाइन किसी दूसरे कलर से आए, दूसरी लाइन किसी और कलर से आए, अगली लाइन किसी और कलर से आए, उसको हम अभी बाद में सीखेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से समझिए कि अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको नहीं छोड़ना है। सो मेनी थिंग्स वी हैव टू बी लर्न, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, बट ट्राई टू बी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर बाद में आप से स्लिप हो जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए जो अभी बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए ना। अभी हुआ क्या बच्चों, अभी हुआ ये कि सर जो हमारी इमेज थी बैकग्राउंड में वो तो चली गई। भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इमेज अब किस फोल्डर के अंदर है, इमेज है इस वाले फोल्डर के अंदर, और हमारी HTML फाइल कहां पर है, इस फोल्डर के बाहर। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड क्या है, ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से, स्टैंडर्ड क्या है कि जब भी हम HTML के प्रोग्रामिंग के साथ काम करेंगे और हमें हमें HTML की इमेजेस भी यूज करनी है, HTML के पेजेस पे इमेजेस भी यूज करनी है, चाहे वो बैकग्राउंड के लिए हो, चाहे वो इमेज फॉर्म में हो, आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी इमेजेस को एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हमें अपनी सारी इमेजेस को रखना है। चाहे तो उसका नाम आप इमेजेस रख सकते हैं, IMG रख सकते हैं, IMG इमेज, है ना, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख लेते हैं। तो मैंने फिलहाल फोल्डर का नाम रखा है IMAGES इमेजेस, राइट। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जितनी भी है, और भी मैं बहुत सारे बैकग्राउंड यूज कर सकता हूँ, और भी मैं बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, सारी इमेज मुझे इस फोल्डर के अंदर रखनी है, ठीक है। अब इस फोल्डर को मुझे याद रखना कैसे है, वहां पे बच्चों जहां पर आपने लिखा है इमेज का नाम, बस उससे पहले हमें क्या लिखना है, उस फोल्डर का नाम IMAGES, IMAGES और स्लैश, बस इतना करना, ठीक है। और यू कैन सी कि हमारी इमेज जो हम अपने वेब पेज पर शो करना चाह रहे थे, वो हमारी इमेज फिर से आ जाएगी। दिस इज द स्टैंडर्ड कि भाई जहां आपको इमेजेस लगानी है, एक से ज्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं, तो आप क्या कीजिए, सारी इमेजेस को एक फोल्डर में रख दीजिए जहां से आपको इमेज उठानी है। और वो फोल्डर कहां पर होना चाहिए, वो फोल्डर वहीं पर होना चाहिए जहां पर आपकी ये HTML की फाइल है, ठीक है। अगर ये HTML की फाइल इस फोल्डर के अंदर होती तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये HTML की फाइल इस XHTML के नाम के फोल्डर है, 10th क्लास के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। और और हमारी जो फाइल है, हमारी जो इमेजेस फाइल है वो इस इमेज के अंदर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या चेंज करना होगा कि भाई यहां पर लगाने से पहले हम क्या लिख देंगे,
उस फोल्डर का नाम, सपोज इस फोल्डर का नाम img होता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे img// और इमेज का नाम डॉट एक्सटेंशन। अब बात आती है कि सर एक्सटेंशन क्या है, लेकिन हमारे फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस, IMAGES। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे एक्सटेंशन की, सर ये एक्सटेंशन क्या है। बच्चों यहाँ पर ना इमेज के बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, जैसे जेपीजी होता है, GIF होता है, PNG होता है, ठीक है, ऐसे अलग 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 यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो इमेज है वो किस एक्सटेंशन की है। देखिए ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जहां पर भी आपने अपनी इमेज सेव की है उसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इमेज को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और चेक करनी है उसकी प्रॉपर्टीज। क्या चेक करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। राइट क्लिक द इमेज, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ये देखिए आ गया प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना टाइप ऑफ फाइल, क्या लिखा है, टाइप ऑफ फाइल। इस टाइप ऑफ फाइल में आप चेक कीजिए एक्सटेंशन क्या है, देखिए डॉट जेपीजी, एक्सटेंशन क्या है डॉट, ये देख रहे हो ये तो लिख रहा है जेपीजी फाइल, हमें ये ध्यान रखना है ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है डॉट जेपीजी, और हमें इस डॉट जेपीजी को अपने इमेज का नाम, देखिए फाइल का नाम क्या है IMG, एक्सटेंशन क्या है डॉट जेपीजी, तो हमें इसी तरीके से वहां पर भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा है क्या, img.jpg। अब देखिए जैसे मैं एक दूसरे फॉर्मेट की फाइल डाउनलोड करता हूँ, वी हैव ए डिफरेंट फॉर्मेट फाइल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ GIF इमेजेस, GIF इमेजेस, ठीक है, आई एम सर्चिंग GIF इमेजेस। तो लेट्स सी एनी let's see any new year butterfly, let's see butterfly images, हाँ, तो flying GIF, okay, this is not GIF, हाँ GIF है, क्या आप देख रहे हो उड़ रही है कि नहीं, ठीक है, देखिए ये है ना GIF इमेजेस है हमारे पास, और ये देख लेते हैं, चलिए यही कर लेते हैं ना, ये काफी अच्छी लग रही है, और ये वाली भी GIF है, ठीक है, ये भी अच्छी लग रही है, और ये वाली ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, पहली वाली कर लेते हैं, ये वाली काफी अच्छी है, ये उड़ती हुई। अब देखिए इसको मैं सेव करने वाला हूँ, सेव एज इमेज, और इसको हमें IMG नाम के फोल्डर में सेव करना है, ठीक है, कहाँ पर सेव करना है, IMG नाम के फोल्डर। हर्ष देखिए बेटा आप कहीं किसी भी ड्राइव में उसको रख सकते हो, आप अपनी इमेज को किसी भी ड्राइव में रख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन बेटा क्या है कि जब आप अपना HTML की वेबसाइट बनाओगे तो आप अपने सिस्टम का पाथ तो दे नहीं सकते कि भाई आपके सिस्टम से एक्सेस कर ले, आपने अपने सिस्टम में किसी भी जगह पर रख दिया, वो तो सही है, कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं HTML का, आप कोई भी पेज बना रहे हैं तो पहले एक फोल्डर बनाइए, उसके अंदर अपनी कोई भी नाम दीजिए फोल्डर को, सपोज आपने दे दिया project1, तो आपने क्या किया, आपने उस फोल्डर के अंदर अपना HTML की फाइल सेव कर दी। आफ्टर सेविंग योर फाइल आप उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाइए project1 के अंदर टेस्टिंग इमेजेस के नाम से, और जितनी भी इमेजेस आप अपने HTML फाइल पे यूज करना चाहते हैं या फिर जितनी भी इमेज आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं उन सारी इमेजेस को आप उस इमेजेस नाम के फोल्डर में रखिए, दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सर हम कहीं भी ड्राइव का पाथ भी दे सकते हैं, नो डाउट बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं दे सकते, हैप्पीली एक्सेप्टेड। बट अब सोचिए कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या अपनी ड्राइव को भी कॉपी करके देंगे अपने फोल्डर में, नहीं कर सकते ना। इसलिए ये स्टैंडर्ड है कि जहां पर आप HTML की फाइल रख रहे हैं उसके अंदर आप एक इमेज नाम का फोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपनी सारी इमेजेस को रखिए, दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड, ओके। बाकी आप ड्राइव वाला कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मैं यहाँ पर इमेजेस के अंदर एक फाइल नेम सेव कर देता हूँ, और देखिए इसका नाम है बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई सेव कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर सेव एज टाइप GIF है,
कि मैं देखिए यहाँ पर जाते हैं फोल्डर के अंदर और देखिए चेक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं ना। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे राइट क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, बट इसकी क्या आ रहा है, GIF एक्सटेंशन आ रहा है, क्या आ रहा है, GIF। अब हमें इस फाइल को कैसे लिखना पड़ेगा, जो इस फाइल का नाम है एग्जैक्टली वो, ठीक है, जो फाइल का नाम है एग्जैक्टली वो लिखना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए सैम्पल टेक्स्ट फिलहाल मैं हटा देता हूँ फॉर द बेटर व्यू, और ये भी मैं हटा देता हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ए सिंगल टॉपिक। और यहाँ पर अब हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है बटरफ्लाई डॉट GIF, क्योंकि अब जो एक्सटेंशन है वो क्या है हमारा, GIF है ना। एंड लेट्स रन दिस कोड, रीलोड दिस कोड, एंड यू कैन सी व्हाट अ ब्यूटीफुल पेज, है ना, बढ़िया लग रहा है ना। यस स्टूडेंट्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेज इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप देखिए बैकग्राउंड में आपकी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, और आप यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हो, हाँ, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हो। लेट्स आई एम राइटिंग समथिंग, माई 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 फर्स्ट बैकग्राउंड, माई फर्स्ट माई फर्स्ट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट 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 कोड, ठीक है, माई फर्स्ट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कोड। सो इफ यू सी दिस, तो बच्चों देखिए ये कोड भी आपके वेब पेज पर, ये कोड, ये जो मैसेज लिखा है ये भी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड में अपनी बटरफ्लाईज को उड़ते हुए भी देख सकते हैं। ओके, सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। आपको बस वेब पेज पर जाना है और वहां पे क्या सर्च करना है ना, GIF इमेज। देखिए मैंने क्या सर्च किया था यहाँ पर, GIF इमेजेस, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी GIF इमेज है, क्योंकि मैं आपको ये सिखाता हूँ कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। कि यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपने सर्च क्या कर दिया, GIF, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया व्हाट, GIF इमेजेस, ठीक है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अब देखिए GIF इमेज फॉर, यहाँ पर आ रहा है लव, ब्यूटीफुल, फ्लावर, बैकग्राउंड रोज, सैड, सैड के बाद आ गया यहाँ पे वाटर, होली, बटरफ्लाई, न्यू ईयर, रेन, है ना, नाइट, हैप्पी दिवाली, बॉडी, नेचुरल, ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट, प्रिंसेस, एनिमेटेड GIF, वैलेंटाइन। तो यहाँ से बच्चों में एक और सुंदर सा व्यू लेते हैं, यहाँ पे रेन का एक व्यू आ रहा था, है ना, चलिए ये भी हम कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी हम बढ़िया सा ले, चलिए यहाँ से लेते हैं, एक बढ़िया सा व्यू लेते हैं, तो बहुत ही सुंदर होने वाला है, हाँ, चलिए देखिए, ओके, एंड एंड कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लेट्स सी, यस दिस वन इज क्वाइट नाइस, यस इट्स गुड, एंड दिस वन, लेट्स लोडिंग इट, बारिश कर रही है तेज वाली, दिस वन आल्सो नाइस, दिस वन इज क्वाइट नाइस, राइट। इसको मैं सेव करता हूँ बच्चों, सेव एज IMG, सेव एज इमेज, तो ये मैं अपने दोबारा से अपने फोल्डर में सेव करता हूँ, और बच्चों रेन नाम इमेजेस RAIN, रेन के नाम से मैंने इसको सेव किया, एंड ये सेव हो चुका है, ठीक है, एंड so many different images are there, so many different images are there, तो मैं बस एक ऐसी चूज करता हूँ, इससे आप और भी बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ से अभी क्या करता हूँ, मैंने अपनी इमेज सेव कर ली है, और इमेज सेव करने के बाद मैं बस अपना कोड चेंज करना है, क्या करना है, रेन, क्योंकि हमारी इमेज का नाम क्या था, रेन।
RAIN रेन, ठीक है। एंड वेब पेज पर जाते हैं, उसको रीलोड करते हैं और ये देखिए हमारी बारिश गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन अप्लाई सम बैकग्राउंड ऑन द वेब पेज, ठीक है। हम अपने वेब पेज पर कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज नॉट ए बिग इशू। बट अभी आप देख रहे हो कि ये एक इमेज है, क्योंकि ये छोटी इमेज थी इसलिए मल्टी टाइम्स आ रही है, यहाँ पर बहुत बार आ रही है ना। इसको बच्चों सॉल्यूशन करने के लिए HTML के अलावा हमें एक और चीज यूज करनी पड़ेगी, उसका नाम है CSS, है ना। केवल केवल HTML से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हमें बहुत सुंदर वेबसाइट बनानी है, बढ़िया वेबसाइट बनानी है, तो HTML के साथ एक और चीज यूज होती है, एक और लैंग्वेज यूज होती है जिसका नाम है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। पहले हम HTML के साथ थोड़े हैबिचुअल हो जाएं, HTML को थोड़े अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी बस आपको क्या करना है, अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, अप्लाई नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूं कि कैसे CSS के थ्रू हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का मत सोचिएगा, जस्ट आई एम शोइंग यू हाउ कैन वी अप्लाई CSS, ओके, एंड कैसे हमें उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं। ये हम लोग अभी अभी एक छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं एक छोटा सा कोड और लिख रहा हूँ, इस हेड के अंदर वो कोड आएगा। मैंने लिख दिया स्टाइल, स्टाइल के साथ, सॉरी, इनसाइड द स्टाइल, स्टाइल वी हैव, डोंट बी कंफ्यूज इन इट, आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस if I am applying CSS also, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ बैकग्राउंड, 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 और बैकग्राउंड में हम डिफाइन कर देते हैं नो रिपीट, नो रिपीट। और ये किसका बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों बॉडी के बैकग्राउंड, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको भी क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, देखिए अभी क्या हुआ, इमेज बच्चों हमारी आ रही है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बस क्योंकि छोटी है ना, इस वजह से थोड़ा, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, अरे समथिंग वेंट रॉन्ग, नो रिपीट सेमीकोलन, जस्ट वेट। क्या हुआ, सेव नहीं होते, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, सॉरी, REPEAT, बैकग्राउंड रिपीट। तो हमने यहाँ पर दे दी क्या, नो रिपीट, नो रिपीट के भाई जो हमारी इमेजेस है वो भले ही छोटी है लेकिन उसे रिपीट मत करो, है ना। हमने क्या कर दिया इसको, नो रिपीट, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि इसका पोजीशन हम सेट कर सकें, ठीक है, बैकग्राउंड नो रिपीट, उसके बाद यहीं पर मैं डाल देता हूँ इसका पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं हम क्या, BAC बैक, GROU, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन, और ये कर देते हैं हम क्या, सेंटर, सेंटर, ठीक है। क्या कर दिया हमने इसको, बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर, सेंटर करके हमने लगा दिया सेमीकोलन। बच्चों अगर आप देखेंगे कि छोटे से चेंजेस करने के बाद, है ना, एंड सेंटर, ठीक है,
तो हम ये भी कर सकते हैं, हमने अपनी इमेज को क्या कर दिया, सेंटर में सेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम HTML के साथ अगर हम CSS को अप्लाई करते हैं तो हम CSS के थ्रू बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि बैकग्राउंड 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 साइज बैकग्राउंड साइज मैंने कर दिया यहाँ पे कवर। बैकग्राउंड साइज क्या कर दिया, कवर। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखिए सेम इमेज, जो छोटी इमेज हो रही थी, अब वो हमारे क्या हुआ, पूरे पेज पर आ गई। ठीक है, पूरे पेज पर आ गई। ठीक है, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, एक और यहाँ पर होता है कंटेंट, CONTENTAIN, कंटेन। ठीक है, तो हम इसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं बच्चों कि हम अपना वेब पेज को, छोटा हो गया है ना, कंटेन कर दिया, छोटा हो गया, या फिर हम अपने हिसाब से उसकी लेंथ घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम दे सकते हैं बैकग्राउंड साइज, लिख दिया 100%, क्या लिख दिया हमने, 100%। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने साइज को 100 से हम कम कर दें, हम इसको 50% करते हैं ना, उस हिसाब से हमारी इमेज छोटी बड़ी है ना, उस हिसाब से हम अपनी कर सकते हैं। इसको हम 80 कर दें, 80%, तो हम अपनी इमेज का साइज घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड। अगर लेकिन हम ये वाला काम करना चाहें केवल HTML से, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम CSS तो खैर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू द एडवांटेज ऑफ CSS विद HTML, कि CSS के एडवांटेज क्या है, कैसे इसको यूज करना है, ये सब हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अपना वही पुराना रह देते हैं कि बैकग्राउंड हमने यूज करना है, और हमने वहां पर बैकग्राउंड लगा दिया है, और ये हमारा बैकग्राउंड पहले के जैसा हो चुका है। ठीक है, तो हमने सेव कर, और यहाँ पर हमने इसको रीलोड कर दिया, और हमारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी अभी तो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड